on this cybercrime. He is the youngest in the Pakistan. Yeah, he's And the smartest. he is a voice of clarity and conviction in cybersecurity leadership. You must have read about him. We have shared the profile with you. So he is with us, although he is in trouble, but still we have requested him, please do not miss the session. We are sorry for that. But yes, I mean, we are committed, so that's why we requested him to please join us, although he is traveling. So he's with us. We welcome him. Yes, right. Sorry, Zimi. Yes, Zimi, sir. Assalamu alaikum everybody. Zimi Rajput here. Let me introduce myself. I'm not very good in speaking English, so if there is any mistake in my conversation, uh, advance. Um, my name is Zimi Rajput, and I am data recovery specialist in Pakistan. There are 10 labs in Pakistan. They are recovering data from storage devices like hard drive, USB, memory card, M1, M2, MacBook, mobile phones, and I own two labs. We recover data from storage devices. The thousands of people waste their data every year, and we recover here in our lab the partial data and the physical data, physical damaged drives. Today, very great session by Ma'am Sanam. Thank you so much, first of all, for inviting me here. अगर मैं साथ थोड़ी थोड़ी उर्दू मिक्स कर लूँ तो मेरा ख्याल है कि कोई मसला नहीं होगा. तो first of all, No problem. No AI. problem. No problem. Yes. Thank you, thank you. Yes. First of all, we are talking about the AI, challenges of AI, how AI is helpful. On the other hand, जहाँ पे टेक्नोलॉजी रहमत है वहाँ पे टेक्नोलॉजी जहमत भी है. So I was listening the previous speaker before after the joining before some time. He was talking about the AI, the challenges. This is a great opportunity to identify what is real and what is fake. Uh, uh, कौन सा डाटा जो है वो ह्यूमन जनरेटेड है और कौन सा डाटा जो है वो एआई जनरेटेड है इन टुडेज इरा वी सी मैनी ऑफ द फेक थिंग्स ऑन इंटरनेट मैनी ऑफ द पिक्चर्स ऑफ आवर रिलेटिव्स आवर फ्रेंड्स जो कि ओरिजिनल नहीं होती लेकिन वो इंटरनेट पे पाई जाती हैं और बहुत सारे लोग ब्लैकमेल होते हैं इसके हाथों. तो हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट डाटा कि डाटा है क्या चीज़. तो अगर मैं कोई बात कर रहा हूँ और बहुत सारे डिजिट्स को यूज़ कर रहा हूँ बहुत सारे सिंबल्स को यूज़ कर रहा हूँ वर्ड्स को आई एम यूजिंग द वर्ड्स आई एम कंबाइनिंग द वर्ड्स सिंबल्स लोकेशंस मैन नेम्स एनी एनिमल नेम एंड मेक अ सेंटेंस दैट्स डाटा. और अगर मैं उसको मोर आइडेंटिफाई करूंगा तो वो इंफॉर्मेशन हो जाएगा. लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि कौन सा डाटा ठीक है और कौन सा डाटा फेक है. तो सबसे पहले हम एआई की बात करते हैं कि जैसे जैसे दुनिया में तरक्की होती गई जैसे जैसे हर रोज एक नई चीज आ रही है तो वैसे वैसे उस चीज को संभालना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया. So I was just talking with a colleague today. He is suffering from a case. Someone make a fake photos of her and blackmail, send it into a WhatsApp and demanding some ransom. तो मैं बहुत ज्यादा इस चीज में शॉक हुआ कि वो तस्वीरें जो है वो एक देखने वाले को भी पता है कि दे आर एआई जनरेटेड पिक्चर्स. Not only pictures, you can make a clone voice before some time. यही बात हो रही थी आवाज को क्लोन करने की और फिर इसी तरह से अभी मैं यहाँ पे अगर बात कर रहा हूँ तो कोई भी बंदा मेरी छोटी सी वीडियो बनाएगा उसकी लिपसिंग सिंक करेगा और वो कुछ भी पीछे बैकग्राउंड पे लगा सकता है. अब हम यहाँ पे ये बात करते हैं एक हाथ एआई यूजफुल कैसे है और दूसरे हाथ एआई खतरनाक कैसे है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये बात करते हैं कि एआई यूजफुल कैसे है. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर किसी की नीड है. फर्स्ट ऑफ ऑल इट हेल्प्स अस इन हैकिंग फिशिंग आइडेंटिफाई द थेफ्ट एंड ransomware attacks. First point is hacking. How we can hack someone's profile, how we can hack someone's, or how someone hack our Facebook profile, Gmail profile. People make links, phishings, the same as original.
जैसा हमें जीमेल में एक चीज नजर आ रही है, लॉगिन पेज नजर आ रहा है, वैसा ही लोग बनाते हैं एआई की मदद से। अगर मैं एक वेबसाइट बनाना चाहूँ तो मुझे शायद उसके ऊपर 4 5 या 6 दिन लग जाएं, लेकिन अगर मैं एआई को कहूँ मुझे ये करना है, मैं टाइप नहीं भी कर रहा, तो जस्ट आई एम टाइपिंग the some facts about my website is based on niches, daily vlogging, data recovery, vegetables, e-commerce site, any services site, any control system. AI will provide you all the code for this website. You can uh, uh, combine the code, you can compose the code and make a website in minutes, in hours. जहाँ पे हम लोग 1 साल में, 1 1.5 साल में एक चीज थीसिस बनाते थे, you can compose your thesis in just a days. But the difference is that human generated content is more pure and more different from AI generated content. कि अगर एक यूजर जनरेटेड आप देखें कि जीमेल की जो फिशिंग होती है, फेसबुक की फिशिंग होती है, मैनी ऑफ अस इस चीज से गुजरे होंगे, सफरिंग फ्रॉम दैट द इशू, कि हम लोगों को एक लिंक आया होगा, हमने उस पर क्लिक किया और हमारी फेसबुक प्रोफाइल गई, हमारी जीमेल प्रोफाइल गई, हमारा जो बाकी अकाउंट्स हैं, हत्ता कि द पीपल हैव लॉस्ट देयर बैंक अकाउंट्स, मैनी ऑफ द बैंक So क्रेडिट्स। your voice is not clear. It's very light and like cutting. Yeah. I was talking about the Yes. bank ransoms के many of us, हम लोग ये गलती करते हैं, we made mistake कि हम लोगों को कोई भी लिंक आता है, we receive a code on Gmail और anywhere else कि अगर आप लोगों को ये आप लोगों का इनाम निकल आया है या फिर यहाँ पे लॉग इन करें। Today I have also see a case, a website, clone of the इम्तियाज माल, इम्तियाज माल की जैसे वेबसाइट होती वैसी, एंड दे वाज सेइंग कि यू विन अ प्राइज, शेयर दिस विद 3 फ्रेंड्स एंड सेंड स्क्रीनशॉट बैक टू अस एंड वी विल डिलीवर द प्राइज, द गुड्स ऑन योर होम एड्रेस। और लोग धड़ाधड़ उसके ऊपर लॉगिन करते जा रहे थे उसको जीमेल के साथ लिंक करते जा रहे थे। First of all, we talk on mobile phone. Mobile phone, there are two operating system in mobile phone. One is Android and second one is iOS. iOS is more strong than Android. Anyone can break the code of your Android phone. This is alarming. ये बड़ी खतरे की निशानी है। और मैंने तो आते ही आप लोगों को डरा दिया ये कह के कि अगर किसी का एंड्रॉइड फोन होगा और वो चोरी हो जाता है तो कोई भी उसका पासवर्ड ब्रेक कर सकता है। बट the iPhone had decided in 2007 that we will compromise on camera. We will give the customer a low battery time. He will charge his phone, her phone, 2 times a day. He will make a pictures not so good. But हम लोग प्राइवेसी पे compromise नहीं करेंगे। 2007 में if we are talking about the Android supporting system, the Android supporting system was very weak. Anyone can break Android system, anyone can theft the files, your pictures, your personal data from Android system. In 2012 when BlackBerry is going to out from market, क्या किसी को पता है कि BlackBerry के मार्केट से आउट होने की वजह क्या थी? दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग फोन, द वन ऑफ द मोस्ट सिक्योर फोन इन द वर्ल्ड टुडे, मेरा नहीं ख्याल कि इस मीटिंग में किसी के पास भी ब्लैकबेरी होगा। The reason was that the BlackBerry was very secure. Not possible to break the BlackBerry system, BBW, BlackBerry software system and hardware system. So, Android has decided in 2012 that we will also work on security. We will secure users' data. पहले तो ये होता था कि एंड्रॉइड कहता था कि ठीक है आप 12 मेगापिक्सल कैमरा भी लें, इतनी ज्यादा स्टोरेज भी लें, ये भी लें, लेकिन आपका डाटा सिक्योर नहीं है। 2012 में एंड्रॉइड 8 आता है एंड आफ्टर द लॉन्चिंग ऑफ एंड्रॉइड 8 देयर वाज अ इवैल्यूएशन इन एंड्रॉइड फोन सपोर्ट सिस्टम के they make a encrypted software. Encrypted, what is meant by encrypted? Encrypted mean if I am saying hello, how are you, the encryption is converting these 3 words, 4 words into uh, multiple digits, multiple logarithms, multiple the tables, and the decryption is to back decrypt into hello, how are you.
सो अगर इन दोनों की हम लोग जंग देखें, iOS की और एंड्रॉयड की, तो एंड्रॉयड शुरू से वीक था लेकिन बाद में उसने काम करना शुरू किया। द क्वेश्चन इज दैट इफ समवन इज गोइंग टू थेफ्ट अवर फोन, if our phone is stolen, then how we can save our data? Yes. Android 8 is accessible, Android 7 is accessible, लेकिन Android 9 accessible नहीं है। Android 9 से ऊपर जितने भी सॉफ्टवेयर आए, अब Android 15 आ गया, Android 16 गूगल पिक्सल ने पहले ही दे दिया, बाद में आएगा वो सारे फोन्स में, तो वो इनक्रिप्टेड फोन है। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ प्रैक्टिसेस बताता हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू सम प्रैक्टिसेस योर डाटा विल सेव इंशाल्लाह आफ्टर यू हैव लॉस्ट योर फोन। फोन की वैल्यू नहीं है, मेन चीज है आपका डाटा। फिर हम एआई पे भी आते हैं कि सबसे पहले तो आपने अगर फिंगरप्रिंट लगाया, आपने फेस लॉक लगाया, आपने पिन कोड लगाया, तो कोई भी दुनिया में एंड्रॉइड को ब्रेक नहीं कर सकता। कोई भी लोग आज ही सारे एक्सपेरिमेंट करके देखें। Let's do some experiment. Post on your Mhm. Facebook profile. I forget my Android password. Many of the people comment below. I can break. Nobody can break. Android system is more strong in today's era. Now come to the AI. How AI is dangerous. हम लोग तारीफें तो बयान करते हैं, चलें थोड़ा सा बेदार होने के लिए, जागने के लिए हम लोग थोड़ा सा एआई को ना थोड़े खतरनाक पहलू से लेट्स डिस्कस फ्रॉम अ डेंजरस पॉइंट कि एआई हम लोगों के लिए खतरनाक कैसे है। अब मैंने पिछले दिनों एक प्रोजेक्ट था और उसमें एक रैंसम अटैक होता है, एक रैंसम वायरस अटैक करता है। अच्छा, कैन रेज योर हैंड, समबडी कैन रेज योर हैंड अगर आप लोगों के भी डाटा में रैंसम अटैक हुआ है कभी, किसी के सिस्टम पे रैंसम अटैक हुआ है कभी कि आपका सारा डाटा खो चुका हो, इनक्रिप्ट हो गया हो, और बदले में हैकर वाज डिमांडेड द $1000, $800, $700 फॉर टू डिक्रिप्ट योर डाटा बैक। बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ होगा। तो एआई को आप ये कहें कि मैं एक ransomware बनाना चाहता हूं और वो मिनटों में आपको उसका एल्गोरिथम बना के दे देगा। एआई दिन ब दिन बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। फिर इसी तरह से अगर हम डिपार्टमेंट्स की बात करें कि डिपार्टमेंट्स के लिए किस तरह ये हेल्पफुल है, हाउ दिस इज हेल्पफुल इन इन्वेस्टिगेटिंग इन forensic. If someone has lost his phone, a department authority can break the password because they have access to WhatsApp. बट ऐसा भी नहीं है कि हम लोगों के WhatsApp पे वो लोग उन लोगों की एक्सेस है। हम लोगों के WhatsApp में से कुछ भी नहीं निकलेगा, मैसेजेस ही निकलेंगे। मेरे WhatsApp में से मेरे कस्टमर्स के मैसेज निकलेंगे। आपके WhatsApp में से जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लासेस का रोला ही चल रहा होगा कि क्लासेस टाइम कब है। लेकिन वहीं पे बहुत ज्यादा ये चीजें हेल्पफुल साबित हुई। तो अब यहाँ पे ना सवाल है कि अगर मेरे सामने दो तस्वीरें, इफ आई हैव सम टू पिक्चर्स, विच वन इज ओरिजिनल एंड विच वन इज एआई जनरेटेड। सो बैकग्राउंड को देखें, किसी भी पिक्चर के बैकग्राउंड को देखें, उस पिक्चर को मैक्सिमम जूम करें, अगर तो वो ऑब्जेक्ट, वो कोई एनिमल है, वो कोई ह्यूमन है, वो कोई प्रोडक्ट है, और उसका जो बैकग्राउंड है वो उसके साथ मैच नहीं हो रहा, पिक्सल्स में फर्क आ रहा है, तो वो एआई जनरेटेड है। एआई जनरेटेड बहुत ज्यादा फास्ट तो हो चुका है, लेकिन इतना ज्यादा फास्ट नहीं हुआ कि वो आपके कैमरे से खींची हुई तस्वीरों का मुकाबला कर सके। कहीं ना कहीं तो वो पकड़ा जाता है। अब आगे चलते हैं कि जो हमारा साइबर क्राइम है, साइबर क्राइम किस तरह हेल्पफुल हुआ और साइबर क्राइम किस तरह एआई के आने के बाद बढ़ा। अब डीप फेक की सबसे पहले हम बात करें, वी टॉक अबाउट द डीप फेक। यू कैन मेक एनीवन्स वीडियो विद द सेम लिप सिंक। अब मैंने पहले ही ये बात की ना कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ तो कोई भी बंदा मेरी वीडियो रिकॉर्ड करके बैकग्राउंड पे कुछ भी लगा देगा और मेरे जो होंठ हैं वो उसके साथ सिंक कर रहे होंगे। तो ये बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक था एआई का। और बहुत सारे लोगों की डीप फेक वीडियोस बनी। फेसबुक पे आप देखें, किसी की भी, किसी कपल की कोई बंदा स्क्रीनशॉट लेके और ऊपर लिख देता है लिंक लेने के लिए राब्ता करें, सारे लोग नीचे लिंक लेने के लिए पहुंचे होते हैं। तो ये इतनी खतरनाक चीज है एआई, लेकिन हमने इसको अच्छा जहां पे यूज करना है वहां पे ब्रूट फोर्स अटैक। हम क्यूएनए की तरफ जाएंगे, बस मुझे 10 मिनट दे दें। मैं इधर सर्विस एरिया में रुका हूँ और 10 मिनट्स दे दें मुझे, अपना सिर्फ मुद्दा बयान करने दें। अच्छा, अब हम सिक्योरिटी और क्राइम की बात करते हैं। अब सिक्योरिटी में एआई क्या करता है कि डिटेक्ट थ्रेट्स इन रियल टाइम, कि अगर
आपके सिस्टम में किसी भी किस्म का थ्रेड आया है और अगर आपने एक चीज मैनुअल बनाई है, दूसरे हैंड पे आपने एक चीज एआई इंटीग्रेट करके बनाई है, कोई भी वायरस, कोई फिशिंग अटैक, कोई रैंसमवेयर, कोई टाइम बॉम्ब, कोई लॉजिक बॉम्ब, ट्रोजन, कुछ भी आता है आपके सिस्टम में, तो एआई उसको डिटेक्ट करेगा। लेकिन शायद विंडो और डिफेंडर उसको बहुत बाद में डिटेक्ट करे, एआई उसको फौरी फौरी डिटेक्ट करेगा, क्योंकि रियल टाइम से चीजें गुजर रही होती हैं। आप एक क्लिक भी करते हैं तो एआई, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि एक टूर जाना चाहिए नारायण कगान वाली साइड पे या कहीं पे भी जाना चाहिए, थोड़ी देर बाद आप देखें कि आपको एड्स आना शुरू हो जाएंगे। तो इतना ज्यादा एआई हम लोगों के ऊपर नजर रखे हुए है आज के टाइम में। फिर दूसरी चीज ये कि ब्लॉक्स, अनऑथराइज्ड एक्सेस, के अगर आप एआई को इंटीग्रेट करते हैं अपने सिस्टम के साथ, अपनी वेबसाइट के साथ, अपने सीएमएस के साथ, अपने सीआरएम के साथ, अपने अटेंडेंस सिस्टम के साथ, स्कूल सिस्टम के साथ, ऑफिस अटेंडेंस शीट के साथ, अगर आप एआई को इंटीग्रेट कर देते हैं, तो जो आपको अनएक्सेस चीजें आ रही होती हैं वो उसको ब्लॉक करता है। ब्लॉक करने के बाद फिर अगर आपके सिस्टम पे कोई अटैक अटैक होने वाला है, तो एआई विल प्रिडिक्ट कि कोई ना कोई बंदा आपके सिस्टम तक एक्सेस लेना चाह रहा है, वो एक्सेस लेने वाला है। अब हम क्राइम की बात करें, ये तो हो गई अच्छी चीजें। अब हम बुरी चीजों की बात करें कि एआई ने क्राइम में कैसे इजाफा किया। आप ये देखें, पूरी एक वेबसाइट को 1 मिनट में क्लोन किया जा सकता है। इसी तरह से किसी की वीडियो उठा के उसको क्लोन किया जा सकता है। वॉइस क्लोनिंग, लेवल लैब पे जाके देखें, वहां पे हजारों वॉइसेस मिलेंगी। एआई के कितने सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको प्रॉपर वो वीडियो बना के देते हैं। अब तो सोरा की बात हो रही थी, मेरे ज्वाइन करने के बाद ही सोरा की बात रिस्पेक्टेड स्पीकर बात कर रहे थे कि सोरा में अब देखें, और बहुत सारे लोगों को ये भी पता नहीं चलता कि ये वीडियो सोरा जनरेटेड है या एक कैट है, उसने हाथ में गन पकड़ी है, वो फायरिंग करती जा रही। कैसे मुमकिन है, कैट कैसे गन से फायर कर सकती है? सोरा मेड वीडियोस। अच्छा, लोगो भी अब लोग रिमूव कर लेते हैं। अब ऐसे टूल्स हैं कि अगर सोरा जनरेटेड वीडियोस हैं तो वो सोरा के लोगो भी रिमूव कर लेते हैं, और ऐसे ही लगता है कि वो बिल्कुल ओरिजिनल है। अब क्रिमिनल्स ने क्या किया कि सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक आया वो ये आया कि आपके जो कार्ड्स हैं, एटीएम कार्ड्स, वो क्लोन होना शुरू हो गए। अब आप फर्ज करें कि आपका जो एटीएम कार्ड है वो किसी के हाथ लग जाता है, उसमें 1000, 1200, 2000 डॉलर है और वो साफ हो जाता है, तो ये तो बड़ा मसला बन गया ना। तो पूरे पूरे हैकिंग लॉगरिथम्स एआई आपको दे रहा है, पूरे पूरे जो है ना वो एक सिस्टम्स बना के आपको एआई दे रहा है। तो इस चीज के ऊपर एआई को काम करना चाहिए कि जो भी ऐसी इंफॉर्मेशन है, हालांकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी, मैं यहाँ पे वो वर्ड्स नहीं यूज कर सकता, लेकिन एआई आपको ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन भी दे देता है जो आपने कभी जिंदगी में सुनी नहीं होगी। और बहुत सारे लोग जो हैं वो ड्रग एडिक्टेड हुए एआई पे, जस्ट एक वो देखने के लिए गए ना कि एआई क्या है, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ और वो उसने मशवरे देने शुरू कर दिए कि ये ऐसे करे तो ऐसे होगा, ऐसे करे तो ऐसे होगा। फिर उसके बाद एविडेंस, हमारे बहुत सारे केसेस में एविडेंस की रद्दो बदल में एआई ने बहुत काम खराब किया। कि कोई भी एविडेंस है किसी के खिलाफ बनाने हैं तो वो भी एआई से बना लो, किसी के बारे में ठीक है तो एआई आपको बता देता है कि वो चेंज कैसे करना है। कहता है कि पूरा पूरा अगर अदालत में किसी का केस चला गया तो वो पूरा, आप उसको एआई को केस बताएं तो वो बता देता है कि आपने इस मसले से बचना कैसे है, इस जुर्म की नोयत से बचना कैसे है। तो ये सारी चीजें, ये हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हम लोग इखलाकन भी, मजहबी तौर पर भी, और एक शहरी होने के नाते उन चीजों को इग्नोर करें और लोगों को आगे बताएं कि यार ये चीज करने वाली है, ये चीज नहीं करने वाली। अच्छा, उसके बाद अब बेनिफिट्स की तो हमने बात की, चैलेंजेस और रिस्क की बात करते हैं। एआई इज हाई कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा एआई सिस्टम बनाएगा और वो बैठेगा और वो बना लेगा। एआई हमेशा हाई कॉस्ट है। आपको उससे कोई भी सोल्यूशन चाहिए, कोई साइबर सिक्योरिटी का सोल्यूशन चाहिए, तो एआई उसका कॉस्ट लेता है, आपको उसकी प्रॉम्प्ट्स देनी पड़ती है, और हर बार परफेक्ट आप लोग उसको प्रॉम्प्ट नहीं देते। आपको एक स्किल चाहिए होती है, लार्ज डाटा स्किल। अब जितना ज्यादा डाटा उतनी ज्यादा स्पेस, और जितनी ज्यादा स्पेस उतना उस स्पेस को रखने के लिए रिस्क। अब बहुत सारे लोगों ने एपीआईज इंटीग्रेट की होती हैं एआई की अपने सिस्टम के साथ, और आपको पता है कि आपका सारा डाटा एआई यूज कर रहा होता है आगे। आप 15 लोग एक ही सवाल पूछें तो शाजो नाजर होगा कि वो 6 को एक जवाब दे, 3 को एक जवाब दे और बाकियों को एक जवाब दे।
अक्सर औकात ऐसा होता है कि वो सबको एक ही चीज बना के देता है, एक प्रॉम्प्ट पे वो एक ही जवाब दे देता है। तो ये ड्रॉबैक है एआई का, जहाँ पे ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है वहां पे इसके नुकसानात भी हैं। एथिकल कंसर्न, प्राइवेसी, आपकी प्राइवेसी महफूज नहीं रहती। आप एक फोन खरीदते हैं, आपने एक फोन खरीदा मार्केट से, कोई भी एंड्रॉयड फोन खरीदा, सबसे पहली एक्सेस आपने दे दी उसको अपने कैमरा की, दूसरी दी फोन बुक की, तीसरी दी माइक की, चौथी दी लोकेशन की, पांचवी दी यूजर एक्टिविटी की, फिर पीछे मेरे पास क्या बचा? मैंने हर चीज की एक्सेस तो उसको दे दी। अब हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो एंड्रॉयड हो या आईओएस, आईओएस में एप्पल इंटेलिजेंस और इसमें जो है वो गूगल का इंटेलिजेंस, वो हमारी हर चीज के ऊपर नजर रखे होता है। और इन फ्यूचर एआई, ये बहुत सारे ह्यूमर्स हम लोग इधर उधर सुनते हैं, एआई इसको ठीक करने जा रहा है। अभी पिछले दिनों ना एक बड़ा मजे का वाकया हुआ। बिफोर द 7 डेज मेरा निकाह था, और निकाह से एक दिन पहले मेरी फेसबुक आईडी उड़ गई। फेसबुक आईडी और पेज के ऊपर 1,10,000 फॉलोअर थे, और मैं बड़ा परेशान हो गया कि अब मैं क्या करूं। अब हुआ कुछ यूं कि पता चला कि तकरीबन 45-46 हज़ार लोगों की फेसबुक आईडीज विदाउट वार्निंग उड़ चुकी हैं। और पता चला कि एआई ने अपने सपोर्ट सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए, मेटा ने एआई इंटीग्रेट किया, और वो कोई कोड गलत हो गया या पता नहीं वो गले पड़ गया है। तो वो सारी आईडीज उड़ गई। अब वहां पे अच्छी चीज क्या हुई? उधर अच्छी चीज ये हुई, हमने ट्रेंड देखा एक्स के ऊपर, जो कि ट्विटर है, एक्स के ऊपर ट्रेंड देखा, एडिट के ऊपर हमने ट्रेंड देखा, वहां पे बहुत सारे लोगों के मसाइल थे। तो मुझे पता चला कि सिर्फ पाकिस्तानियों की नहीं, गोरों की भी उन्होंने आइडियां उड़ाई हैं। और फिर फेसबुक ने इसको फिक्स किया, विद इन 2 डेज फिक्स किया, सबकी आईडीज वापस आई। इतनी बड़ी कंपनी मेटा, जिसके एआई सिस्टम में एक एरर आने की वजह से वो हजारों लोगों का, लाखों लोगों का अकाउंट फ्रीज कर सकता है, उड़ा सकता है विदाउट एनी रीजन। तो कभी भी एआई के ऊपर रिलाई करें, लेकिन इतना ज्यादा ना करें, उसको सारी चीजें ना बताएं। तो अब मेरा ख्याल है कि हम क्यूएनए लेते हैं, और आप डाटा के बारे में भी। इससे पहले मैं आपको ना Yes. कुछ चीजें बता हाँ देता जी। हूँ कि मैं आपको चंद चीजें बताता हूँ कि आप अपना डाटा महफूज कैसे रख सकते हैं। जिनके पास Yes. एप्पल है, सीरी को ऑफ करें। सीरी आपकी बातें सुन रहा होता है, आप जब भी हे सीरी बोलते हैं, अभी मैं हे सीरी बोलूंगा तो मैं एप्पल से, ये मैंने ज्वाइन की हुई है, तो वो फौरी तौर पर पूछेगा मुझसे कि हाँ जी मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ। सीरी को ऑफ करें, उसको तब यूज करें जब आपको यूज करना है। एप्पल इंटेलिजेंस इज वेरी गुड थिंग, एंड्रॉयड इंटेलिजेंस इज वेरी गुड थिंग। सोरा यूज करें, चाहे आप व्यू 3 यूज करें, आप कोई भी चीज यूज करें, बट कभी भी अपनी पर्सनल चीज उसको मत दें। पिछले दिनों हम लोगों ने एक ट्रेंड देखा, जिसमें कोई भी अपनी पिक्चर अपलोड करता था, और पिक्चर अपलोड करने के बाद वो उसको कार्टूनिक, पिक्चर कार्टूनिक बना देता था। अब एक लम्हे के लिए सोचें कि आपकी कार्टूनिक इमेजेस को वो डी कोड करती है वेबसाइट, और वो आगे भेज देती है। हम लोग पहले भी इस चीज को देखते आए हैं। पाकिस्तानी 10 लाख लोगों का डाटा रिसेंटली डार्क वेब पे गया, एटीएम्स का, एटीएम कार्ड्स का। और पता चला कि जब हम खाना खाते हैं, जब हम फ्यूल रिफिल करवाते हैं, कुछ चीज लेते हैं, हम कार्डलेस पेमेंट करते हैं, तो वो कार्डलेस पेमेंट से आगे डिटेल्स गई हैं। फिर उसके बाद स्नैपचैट हैक हुआ, स्नैपचैट में लाखों लोगों का डाटा, 2 बिटकॉइन 1.5 करोड़ पाकिस्तानी बनता है, 1.5 करोड़ के इवज डार्क वेब पे फॉर सेल था। एआई की बहुत सारी वेबसाइट्स, जो एआई की जनरेटेड वेबसाइट्स थी, वहां पे मिनटों का काम सेकंडों में होता था, उन्होंने डार्क वेब के ऊपर जाके डाटा बेचना शुरू किया। तो इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखें कि जब भी आप एआई से काम ले रहे हैं, अपना प्रोफेशनल काम लें, अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन उसको ना दें, या पर्सनल सवाल जो आप ना करें, अपनी फैमिली डिटेल, कार्ड डिटेल, अपनी पर्सनल कोई चीज उसके हाथ में आपने नहीं देनी। मेरा ख्याल है कि हम 5-10 मिनट का क्यूएनए करते हैं बस, तो फिर उसके बाद इजाजत Yes. चाहूंगा। आई एम रियली बिल्कुल रियली ऐसा ही रियली है। सॉरी, आई वाज इन ट्रैवलिंग, आई हैव स्टॉप्ड द कार इन अरेस्ट एरिया। तो इरादा तो यही था कि एक लंबा सेशन हो, और फिर टाइम भी अभी नो मेरा ख्याल नो है कि मेरा प्रॉब्लम, बिकॉज पूरा। आई नो यू कैन नॉट ज्वाइन अस फॉर क्यू एन ए सेशन। तो हम चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो क्वेश्चंस को अगर रिप्लाई कर दें तो यस यस, एनीवन कैन बहुत सारे लोगों को रीड द अर्जेंट है। क्वेश्चंस मैं प्लीज। आपसे पूछ लेती हूँ। Yes, I'll read it for you. I'll read it for you. No थैंक यू सो problem. मच बस मैम। आप इनका जवाब। और एक और चीज, I would like to ask all the participants, if you cannot understand Urdu for now, what you can do, there is an Oh, option. I'm really 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 That's sorry, okay. I'm That's really okay. sorry. No, that's okay. But there is a solution for every problem. You can just turn on the caption
in your language, and like you can understand what he is saying, right? Just for his, By just the for way, his, by the way, I was not good in English since my school time. But I will learn. I'll try to improve that's my completely English, okay. inshallah. No problem. Acha, sir, they are saying like, do we can we recover WhatsApp deleted messages without backup? Oh wow, very good $1 million question. I have the answer Uh, already. If you remember, we have discussed and we have talked about it. Like you said, no, it's not possible at that time. I don't know now, but as I just lost my data and if I you are contacted using him WhatsApp, and I said, please uh, recover my data. It's very important. And you said, no, it cannot be done. WhatsApp is a real-time platform. If you are doing conversation between the two WhatsApp users, they are the messages are end-to-end encrypted. End-to-end encrypted mean कि मैंने Hmm. मैसेज भेजा तो वो मुझे पता है, अगले ने मैसेज रिसीव किया तो वो उसको पता है. If Mm-hmm. you are deleting something, the image message from WhatsApp, it's also deleted from the WhatsApp server. So you can't recover, and there is no Okay. any policy of WhatsApp. They will give your data back to the user. तो आप WhatsApp का डाटा डिलीट हुआ वो रिकवर नहीं कर सकते किसी भी सूरत. Okay. So WhatsApp data cannot be recovered if the end-to-end अगर उसका encryption is बैकअप on. है, Uh-huh. बैकअप है अगर, तो फिर आप उस इस तरह करें कि आप अपने WhatsApp को अनइंस्टॉल करें नया बैकअप बनाने से पहले. अनइंस्टॉल Okay. करें और दोबारा आप उसका बैकअप इंस्टॉल करें तो आपके पिछले मैसेजेस आ जाएंगे. Acha, there is one more question from Fatima. But sir, it's not possible to use any app or a these access to the camera and storage. Is there any way to overcome this? Allow ही नहीं करता है ना वो हमें जब तक हम उसको access ना Yes. दें तो. Yes. लेट्स मुझे एक मिसाल देने दें कि एक बैंक ऐप है, फर्ज करें किसी भी बैंक की, उसको मेरी फोन बुक की एक्सेस क्यों चाहिए? या उसको चलें ये समझ आता है कि लोकेशन उसको इसलिए चाहिए कि मैं कहीं और से मेरा हैक तो नहीं हो गया, उसको मेरी फोन बुक क्यों चाहिए? मतलब कभी आपने सोचा बहुत सारी बैंक ऐप्स हैं जो आपकी फोन बुक एक्सेस भी मांगती हैं, और Mm-hmm. बहुत सारी जो बैंक ऐप्स हैं वो आपका कैम कॉर्डर या आपका जो माइक है उसको भी उसकी भी एक्सेस मांगती हैं. तो आप अगर एंड्रॉयड यूज़ करें तो फिर ऐसा करना है कि ऐप डिटेल में जाके आपने एक दफ़ा एक्सेस दे के अपना काम करके, ठीक है, ऐप यूज़ करके उसके बाद आप उसको रिमूव कर दें. हाँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इनकी अगर आप एक्सेस रिमूव करेंगे तो फिर उसके बगैर गुजारा नहीं है. देखिए ना, दे आर प्रोवाइडिंग योर यूज द सर्विसेज, द कॉलिंग सर्विसेज, द मैसेज सर्विसिंग, द फेसबुक फीड सर्विसेज विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट. तो बदले में उन लोगों को क्या चाहिए? बदले में उन लोगों को हमारा डाटा चाहिए. मुझे खाने में क्या पसंद है, मुझे मिलने में कौन सा दोस्त सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, मुझे सबसे ज्यादा कौन सी जगह पे जाना पसंद करता है. तो इसके बगैर तो गुजारा नहीं है. लेकिन आप कोशिश करें कि ज्यादातर ऐसी चीजें, जैसे आपकी फोन बुक है, तो फेसबुक तो मांगती सबसे पहले फोन बुक है, और वो लोगों को सुजेशन में दिखाना शुरू कर देती है कि ये बंदा फेसबुक पे आ गया है, तो वो Yes. डिसेबल कर लें. हाँ, माइक की आप तब अलाउ कर दें जब आपने कोई वॉइस मैसेज करने, फिर ऑफ कर दें. Okay. There is one more question. जिस तरह आपने बताया कि like in iPhone we can turn off the Siri. How about the Android? What we can do to protect data in Android? अगर मैं ये कहूँ कि एंड्रॉयड तो आप चाहे सो रहे हैं लेकिन आपके एंड्रॉयड का माइक जाग रहा होता है, तो ये कितना ज्यादा अलार्मिंग है. तो मैंने आगे मिसाल दी ना कि हम लोग ये कहें ना कि मैंने अभी मोटरवे से उतर के फला जगह पे खाना खाने जाना है, तो मुझे उस जगह के ऐड आने शुरू हो जाएंगे और उसके कंपटीटर के भी ऐड आना शुरू हो जाएंगे. तो इसको Mm-hmm. रोकने का कोई तरीकाकार नहीं है. आप कोशिश करें कि कोई भी थर्ड पार्टी ऐप ना इंस्टॉल करें. ऑपरेटिंग सिस्टम तक तो हम ट्रस्ट कर सकते हैं, ये तो ट्रस्टेड हैं, एंड्रॉयड भी ट्रस्टेड है, एप्पल भी ट्रस्टेड है, इनके बगैर Mm-hmm. तो हम चल नहीं सकते ना. तो थर्ड पार्टी एप्स में असल मसला होता है. आपको याद हो कि कुछ अर्सा पहले जीबी व्हाट्सएप आया था, मार्केट में रंग बिरंगे व्हाट्सएप आए थे, जीबी व्हाट्सएप, एफएम व्हाट्सएप, रेड Mm-hmm. व्हाट्सएप, फला व्हाट्सएप, ये व्हाट्सएप, वो व्हाट्सएप. और तकरीबन 25 करोड़ लोगों का 25 करोड़ लोगों का डाटा डार्क वेब पे फॉर सेल था. इन्वेस्टिगेट हुआ तो पता चला
व्हाट्सएप ने कहा नहीं भाई ये हम लोगों के प्लेटफॉर्म से नहीं गया, तो ये जो आपने थर्ड पार्टी एप्स इंस्टॉल की है ना, ये उधर से डाटा गया है। तो वो भी बहुत सारे लोगों ने खरीदा था, लोगों की कन्वर्सेशंस थी पर्सनल और बिजनेस। तो थर्ड पार्टी एप्स ना इंस्टॉल करें। लेकिन जहां तक है एंड्रॉयड का सवाल, तो वो यूज नहीं करता आपके, मिस यूज नहीं करता आपके डाटा को। उसकी टर्म एंड कंडीशंस होती है, तो वो अगर आप पढ़ लें तो उसमें लिखा होता है कि हम आपका डाटा यूज नहीं करेंगे। हम पढ़ नहीं सकते, हम बस एक्सेप्ट करते हैं सारी चीजें, ये भी हम यस। लोग का एक मसला है। यस यस यस, एक्सेप्ट एंड देन वी कम हाँ टू जी। नो। ओके, देयर इज हाँ वन जी। मोर क्वेश्चन, व्हाट डज एंड्रॉइड 8 मीन्स? व्हाट डज एंड्रॉइड, एंड्रॉइड 8? यस, मुझे कुछ समझ नहीं आई इस सवाल की। व्हाट डज इट मीन? It's the एंड्रॉइड year एज? 8, number 8, yes, 8, एंड्रॉइड एज मतलब अब पता नहीं ये पूछना चाह रहे हैं 8, कि एंड्रॉइड number कितना 8, अरसा चल 8. सकता है। I mean, it's a number 8. Ahmed, एंड्रॉइड yes, वर्जन 8 की बात हो रही है। एंड्रॉइड version, वर्जन 8 की बात हो रही yes. है। You are talking about the how many years can a Android use? नो नो, वर्जन 8 की बात हो रही है कि वर्जन 8 जो आ रहा था उसमें से जो अपडेट ओके नहीं ओके हुई ओके, उसकी बात हो वर्जन रही है। 8। Yes. अच्छा, जो एंड्रॉइड का वर्जन 8 है वो इनक्रिप्टेड है, ठीक है। उससे नीचे कोई भी एंड्रॉइड वर्जन इनक्रिप्टेड नहीं है। और मजे की बात बताऊं कि एप्पल का जो एप्पल 2 आया था, या एप्पल 3 और एप्पल 3GS आया था, वो इनक्रिप्टेड है। यानी कि वो बेसिक इनक्रिप्टेड है, बहुत ज्यादा सिक्योर। अब एंड्रॉइड 8 से नीचे तो अगर किसी ने पासवर्ड भी लगाया है तो वो 15-20 मिनट में ओपन हो जाता है। आप किसी भी सॉफ्टवेयर वाली शॉप पे ले जाएं, 200 रुपया लेके वो ओपन कर देगा, उसका सारा डाटा उसमें खुला है। लेकिन एंड्रॉइड 8 के बाद कोई भी एंड्रॉइड वर्जन, आई एम रिपीटिंग अगेन, कि एंड्रॉइड 8 के बाद कोई भी एंड्रॉइड वर्जन ना तो पासवर्ड ब्रेक हो सकता है, ना उसको कोई एक्सेस कर सकता है। और अगर कुछ चोरी करके ले जाता है और आपने फिंगरप्रिंट और पिन कोड लगाया है ना, तो वो कभी भी आपका डाटा नहीं निकाल सकता। फोन उसका हो गया, डाटा आपका ही रहेगा। Okay, that's great. Okay, Mr. Ajaz wants to ask the question, which is the last question, because Yes, we please, don't please. have time. Yes, Ajaz sir, you can open your mic and you can ask the question. Acha, there is one question. Sidra is asking, as you said that we should not share